Good morning, student. Integral class 12 NCERT exercise 7.2, page number 305. In last video, we did the question number till 32. Today, we are going to start 33 onward. So, question number 33 is integrate 1 upon 1 minus 10x. Here the integrand is 1 upon 1 minus 10x and the exercise is based on integration by substitution. So given integrand is not in standard form. So first of all, we will try to convert the given integrand in integrable form. So integral I is equals to 1 upon 1 minus 10x can be written as sin x upon cos x. If we take LCM, then it will be convert cos of x upon cos x minus of sin x. Still, this is not in integrable form. So, we will try to convert in integrable form. So, first let us, if we multiply by 2 in numerator and denominator, then it will be 1 upon integrand cos of x plus of cos of x whole upon cos x माइनस ऑफ sin x dx। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर आपका cos x माइनस sin x है, तो हम चाहेंगे कि न्यूमरेटर में भी cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x का फॉर्मेट आए, ताकि सेपरेट करने पर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके cos 2 cos x को लिखा आपने cos x प्लस cos x, फिर यहाँ माइनस साइन एक्स, देखो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस, तो माइनस साइन एक्स अपन ने यहाँ साइन एक्स माइनस सब्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर साइन एक्स अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में 2 टर्म होगी cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस ऑफ साइन एक्स। नाउ न्यूमरेटर 2 टर्म है, डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है, सो वी विल सेपरेट। सो ऑन सेपरेशन numerator cos x minus of sin x, denominator cos x minus of sin x dx. This term will be completely varies and remaining is 1 by 2. This 1 by 2 common. So यहाँ आ गया और numerator cos x plus of sin x upon cos x minus of sin x dx. Now this is cos x minus sin x upon cos x minus sin x cancel out, so 1 बचा। 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, so 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और यहाँ पर ये f डेस x upon fx फॉर्म है। so डिनोमिनेटर को अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म से इंटीग्रल कर लेंगे। so finally required integral I is equals to 1 by 2 1 dx minus integral cos x minus sin x upon cos x plus of sin x dx। now यहां पर अपन इसको इंटीग्रल एक और स्टेप लिख देते, 1 by 2 x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x minus sin x upon cos x plus sin x dx। now let this is I1, where in I1 में अपन क्या करेंगे, where let cos x प्लस ऑफ साइन एक्स को अगर अपन t मानते हैं तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन x का डेरिवेटिव cos x dx upon dt will be equals to 1. So this is cos x minus sin x dx will be equals to dt. So implies that I1 में by substitution देखिए minus 1 by 2 आपका as it is था यहाँ, sorry this was the plus of 1 by 2. So 1 by 2 is as it is integration 1 upon t dt. So it I1 will be equals to 1 by 2 log absolute t plus of c। समझ में आ रहा आपको? हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रल 1 का x हो रहा, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, लेंथ स्टेप थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसलिए अपन ने इस वाले इंटीग्रल को I1 मान लिया। तो यहाँ पर cos x plus sin x को अगर अपन t मानते तो माइनस sin x plus cos x dx बराबर dt हो जाएगा, जो आपका न्यूमरेटर है। सो 1 by 2 आपका as it is है, इंटीग्रेट 1 upon t dt that is log absolute t plus of c। So final integral I is equals to 1 by 2x
plus 1/2 log of cos x plus sin x plus of c. So that's very important question. Please pause the video and note down. Then question number 34 is integrate I is equals to root of 10x whole upon sin x into cos x dx. So integrate is root 10x upon sin x upon cos x. What we will do? First of all, we will try to convert in integrable form. So here integrand is root 10x upon sin x into cos x, and this is directly not in integrable form. So what we are doing here, integrate root 10x को अपन ने as it is रखा और डिनोमिनेटर में क्या किया, sin x into cos x है. सो अपन क्या करेंगे, इसको अगर अपन cos x से यहाँ पर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो into cos x एक बार और आ जाएगा. दिस sin x अपॉन cos x बन जाएगा आपका 10x, दिस cos x into cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x. वेरी सिंपल. sin x cos x दे रखा था, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. देखिए इंटीग्रल I बराबर न्यूमरेटर आपका रूट 10x है, उसको अपन ने कुछ भी नहीं किया, दिस sin x cos अपॉन cos x, ये 10x हो गया, cos x into cos x हो गया ये cos स्क्वायर x dx. अब ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x को अगली स्टेप में अपन sec स्क्वायर x लिख देंगे. सो रूट ऑफ 10x into sec स्क्वायर x होल अपॉन 10 of x dx. Now it is in integrable form. अगर मैं 10x को t लेता हूं तो sec square x dx dt हो जाएगा. So let 10x is your t. Then sec square x dx will be equals to dt. So new integral root of t upon t dt. Now इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रल I is equals to t की पावर 1/2 minus 1, that is t की पावर minus 1/2 dt. So final integral t raised to the power minus 1/2 plus 1 upon minus 1/2 plus 1 plus of c. So integral will be t raised to the power 1/2 upon 1/2 plus of c. So finally integral will be twice root t प्लस ऑफ सी. टी की वैल्यू वापस पुट अप कर दी, तो फाइनल इंटीग्रल I बराबर ट्वाइस रूट 10x प्लस ऑफ c. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. Then question number 35. Integrate 1 plus log x whole square upon x dx I is equals to. So let 1 plus log x is equals to t. अगर मैं इस 1 plus log x को t मानता हूं तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 upon x log के रेस्पेक्ट, x का dx upon dt और t का 1. So 1 by x dx is your dt. So this 1 upon x dx आपका dt हो जाएगा. So by substitution required integral I will be 1 plus log x को अपन ने t लिखा, so t square and 1 upon dx किसके बराबर हो रहा dt, so t square dt. Very simple integral.
now I will be equals to t cube by 3 प्लस ऑफ से सिंपल x की पावर n, बहुत बेसिक फॉर्मूला यूज ले रहे हैं अपन जो सबसे पहले इंटीग्रल में यूज लिया, x की पावर n dx is equals to n plus 1 upon n plus 1 plus of c. So x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus of c. So t cube upon 3 plus of c. So finally our integral will be equals to t की वैल्यू अपन पुट अप करेंगे, t is equals to 1 plus log x. So 1 plus log x का whole cube by 2 plus of c will be your answer. Then question number 36. Integrate x plus 1 into x plus log x whole square upon x dx. Again good question. देखिए डायरेक्टली अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज नॉट इन इंटीग्रेबल फॉर्म, बट थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करेंगे, अगर x प्लस log x को अगर अपन t पुट अप करें, x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x का 1 अपॉन x, x का dx अपॉन dt, t का 1. सो एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन 1, दिस इज x प्लस 1 अपॉन x dx विल बी इक्वल्स टू dt. सी दिस x प्लस 1 अपॉन x dx विल बी dt हो जाएगा. सो बाय सब्स्टिट्यूशन required integral I will be x plus log x को अपन ने t माना, so t square x plus 1 upon x dx किसके बराबर हो रहा है, dt. So finally it required integral is t square dt. So it will be t square का integral t cube upon 3 plus of c. कौन सा फॉर्मूला लिया, वेरी बेसिक, इंटीग्रल x की पावर n dx n plus 1 upon n plus 1 plus of c. अगेन t क्या था आपका, x plus log x, so required integral is x plus log x whole cube upon 3 plus of c is your answer. Please pause the video and note down. Then again very good question, 37. Question number 37. Integrate x cube sine of tan inverse x raised to the power 4 whole upon 1 plus x raised to the power 8 dx. So this is the required this is integrate which is in integrable form by substitution. So सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर मैं let take tan inverse of x raised to the power 4 को अगर मैं t मानता हूँ, तो tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन tan inverse के रेस्पेक्ट 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x की पावर 4 का होल स्क्वायर इनटू x की पावर 4 का 4x क्यूब, x की पावर 4 का 4x क्यूब और x का dx अपॉन dt, t का 1. अब देखिए रिक्वायर्ड क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx इज dt. तो इस 4 को मैं क्या करूंगा, x को यहां लिखता हूं, x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 होल पावर 2 इज 8 dx इज इक्वल्स टू dt बाय 4. इस 4 को अपन ने राइट में ट्रांसफर कर दिया. सो x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx तो आपका dt हो गया और tan इनवर्स x की पावर 4 को अपन ने t मान लिया. सो बाय सब्स्टिट्यूशन सी क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, रिक्वायर्ड इंटीग्रल साइन ऑफ t dt बाय
4, उस 4 को अपन बाहर लिख लेंगे बाद में। sin tan इनवर्स x की पावर 4 40 तो sin t हो गया, x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx dt by 4 हो गया। अब इस 1/4 को अपन बाहर लिख लेंगे, बिकॉज कांस्टेंट इनटू फंक्शन इंटीग्रेशन इज कांस्टेंट आउट फंक्शन का इंटीग्रल, तो sin t dt। इसका फॉर्मूला भी आप क्या लिख सकते हैं कि fx dx will be equals to constant out फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। दिस कॉन्सेप्ट अपन ने यहां पर यूज लिया। नाउ इंटीग्रल 1/4 एज इट इज, sin t का इंटीग्रल हमेशा माइनस cos t प्लस ऑफ c, सो रिक्वायर्ड इंटीग्रल माइनस 1/4 cos t। व्हाट इज t? t is tan inverse of x raised to the power 4 plus of c, that is your required answer. So please pause the video and note down. That's good question due to exam point of view, और बहुत easy question भी है। Then question number 38. Objective question. Choose the correct answer in question number 38 and 39. So let us do the 38. Integrate 10 x raised to the power 9 plus 10 raised to the power x log of 10 on the base e upon x power 10 plus 10 raised to the power x dx किसके इक्वल? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। देखो डिनोमिनेटर को अगर अपन डायरेक्टली ले, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को अगर मैं t लेता हूं तो x पावर 10 का x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, तो 10 x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10 x की पावर 10 माइनस 1 प्लस 10 की पावर x, दैट इज a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू log ऑफ a ऑन द बेस e, तो 10 की पावर x का 10 की पावर x इनटू log ऑफ 10 ऑन द बेस e dx is equals to dx upon dt is equals to 1. So 10 x raised to the power 9 plus 10 raised to the power x log of 10 on the base e dx आपका dt के बराबर हो रहा है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, so I is equals to integral 1 upon t dt, 1 upon t, 1 upon लीनियर का डायरेक्ट log लीनियर होता है, so log of absolute t plus of c। यहाँ t की वैल्यू फिर से पुटअप कर दें, सो रिक्वायर्ड इंटीग्रल i बराबर log ऑफ एब्सोल्यूट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस ऑफ c। नाउ सी which option is it? log of 10 की पावर x plus x की पावर 10 plus c, so your d option is correct. So very simple question। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि हमने क्या क्या यूज लिया। देखिए एक तो आपको जो फॉर्मूले में यहाँ लिख देता एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इंटीग्रल और डेरिवेटिव में कंफ्यूजन होता है। देखो x की पावर n का इंटीग्रल n इंटू x की पावर n माइनस 1, सॉरी डेरिवेटिव। दूसरा dy dx ऑफ 10 की पावर x, मतलब a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू log ऑफ a ऑन द बेस e है। और तीसरा जो फॉर्मूला यूज हुआ कि इंटीग्रल 1 अपॉन x dx, दैट इज log एब्सोल्यूट x प्लस ऑफ c। तो ये तीन कॉन्सेप्ट अपन ने यूज लिए इस क्वेश्चन में। x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू log ऑफ a ऑन द बेस e, और 1 अपॉन x का जो इंटीग्रल है वो log ऑफ एब्सोल्यूट x प्लस c। इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट यहाँ लिख रहा हूँ कि जनरली
स्टूडेंट को a की पावर x की डेरिवेटिव और a की पावर x के इंटीग्रल में बहुत कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। a की पावर x का dx होता है a की पावर x अपॉन log ऑफ a ऑन द बेस e प्लस ऑफ c। ध्यान रखिए डेरिवेटिव में log ऑफ a प्रोडक्ट फॉर्म में न्यूमरेटर में आता है और इंटीग्रल में a की पावर x का इंटीग्रल, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट के लिए। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू log ऑफ a, जब अपन डेरिवेटिव करते हैं तो log ऑफ a ऑन द बेस e प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है, और a की पावर x का जब इंटीग्रल कर रहे हैं तो a की पावर x अपॉन दैट इज log ऑफ a जो है वो आपका डिवीजन फॉर्म में आता है। सो दीज आर द सम कांसेप्ट, प्लीज पॉज द वीडियो and note down. Now last question, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 39 है। सो क्वेश्चन नंबर 39 is integrate 1 upon sin square x into cos square x। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है। अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज लेंगे, न्यूमरेटर में 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 10th में पढ़ा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो 1 को अपन ने रिप्लेस कर दिया इससे। ऐसा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों टर्म जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ऑन सेपरेशन दिस विल बी directly integrable form. So I will be equals to sin square x upon sin square x into cos square x dx plus cos square x upon sin square x into cos square x dx। आप देखिए यहाँ sin square से sin square कट जाएगा, cos square से cos square कट जाएगा, 1 upon cos square that is sec square x dx प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर cosec स्क्वायर x dx। देखिए sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव, मतलब sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल है दैट विल बी tan x होगा। cosec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, माइनस cot x का, क्योंकि cot x का माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो यहां पर लिख देंगे माइनस ऑफ cot x प्लस ऑफ c। नाउ c tan x minus cot x plus c is the required integral। so c कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ये tan x minus cot x plus c is your b option। so correct answer is option b। so please pause the video and note down how you liked this video. Please like it, share it and subscribe it. Now we have completed 2 exercise, first general exercise and this second 7.2 exercise was absolutely based on substitution method. Now we will do in next video some important integral based on the trigonometric identities, and then further we will discuss. So please be continue, watch the video, share it and subscribe. Thank you.